Now I would like to call upon Swami Omananji on the stage and request Dr. Prerna Manana to introduce our guest speaker with the audience. It's a privilege and pleasure both to extend felicitation to our guest speaker, well-known management, yoga and personality maestro, Honorary Chairman, International Association of Indian Yoga, Honorable Swami Omanandaji. You are a born yogi and your special teachings are designed for complete beautification and purification of body, mind, intellect, brain and soul. You have rendered your valuable services as President, Hindu University of America, Florida and USA, and now you are serving in these universities as Honorary Director. You are the Chairman of the Paramananda Institute of Yoga Sciences and Research in USA. We are overwhelmed by your benign presence. So, ladies and gentlemen, please give a big hand of applause to Swami Omananji. Dear friends, dear divine friends, first of all, I am going to speak both in Hindi as well as in English. I attended few of the sessions here. Some of the audience can understand Hindi much than English. So some of the friends who are from foreign countries, I apologize from them if I speak English or Hindi in between. Pandit Radheshyam, it is because of him we are here. So first of all, give him a big hand. I not only congratulate him, I congratulate the complete team who has organized, very well organized, such a nice event. It is not a local event, it is not a national event, it is an international event. I traveled myself 52 countries. I know it is very difficult to talk about any event, we call it international. And that too on a subject which is originated from India और आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है योग. Earlier, about 200 years back, no one was knowing yoga in India. We used to know it as yoga. In 2006, on Time magazine cover, it was yoga, and in India, in all elite class, the Time magazine comes, and all the industrialist and rich community started rushing towards yoga, and in last 5 years, yoga has become yoga and it is exploded like anything. लेकिन आपको बड़ा जानकर दुख होगा, आप इस देश में अब योग सीख नहीं सकते और सिखा नहीं सकते. कारण अमेरिका ने 150 से ज्यादा पेटेंट कर ली हैं योग के और योग आसनों के. 2000 से ज्यादा कॉपीराइट हो चुके हैं आपकी योग की मूल प्रतियों के. आपके घर में एक ग्रंथ पड़ा हुआ है जिसको आप गीता कहते हो, वो ऑलरेडी वहां पेटेंट हो चुका है एंड कॉपीराइट हो चुका है. I used to teach Gita myself in New York University. More than 50% university abroad are now talking, seeking and discussing about Gita, and unfortunately in our own country, from where the Gita started, आपके घरों में धूल चाटती है. हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए ताकि इन लोगों को बुरा ना लगे. और ईमानदारी से पूछना, बड़े बड़े ब्रह्मदेव हमारे यहाँ बैठे हैं जिनको हम योगी राज कहते हैं, गीता को हाथ नहीं लगाते. कितने चैप्टर्स होते हैं गीता में? प्लीज लेट मी नो. पीछे से, आगे से नहीं पूछता. 2-5 के नाम बताओ. सन्नाटा हो जाता है. कितने दुख की बात है हमारे देश के अंदर. उस महान ग्रंथ को जिसको शोपेनहावर ने सिर के ऊपर रखा और डांस करने लग गया कि इसके जैसा ग्रंथ दुनिया में ना आज तक हुआ ना होगा, क्योंकि वहां जिस वाणी से निकला है दैट इज जस्ट कॉन्शियसनेस. उस कॉन्शियसनेस को, उस महान योगी राज को भूल गए जिसकी आप नगरी में बैठे हो. दिस इज द प्लेस वेयर योगी राज कृष्ण स्टडीड हिमसेल्फ. You should be proud of him. What we are doing here, not even mentioning about him in the entire international conference. I could be the first person talking about him here. श्लोक जरूर बोला गया उनका. न्यूटन का 3rd लॉ,
क्या कहता है बताइए? आप में से साइंटिस्ट बहुत हैं। जैसा कर्म करोगे, ये किसका सिद्धांत है? उस न्यूटन ने गीता की चोरी करी और उस न्यूटन को आपके कॉलेज में पढ़ा दिएगा, स्कूल में पढ़ा दिएगा, उसको शान से पढ़ते हो, शान से बोलते हो और उस गीता को भूल जाते हो, जो कि हमारे योग का महान ग्रंथ है। इट इज सच ए शेम ऑन वी पीपल। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब इस देश को अंग्रेजों ने तोप और बंदूक के बल पर राज किया, उस समय हम गुलाम हो गए। 1904 में यूजीसी एक्ट बन गया और आज वही एक्ट अभी भी लागू है। गुलामों को पढ़ाने वाली विद्या आपको पढ़ाई जा रही है। आप में से कितनों का आपके मन के विचारों पर नियंत्रण है? कृपया हाथ उठाएं। जिसका भी मन के विचारों पर नियंत्रण है, मैं उसको साक्षात दंडवत करता हूं। आप दुनिया को कंट्रोल करने जाते हो। योग किसको बोलते हैं? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। व्हाट इज योगा? गोइंग बियॉन्ड द मूवमेंट्स ऑफ माइंड। इसी धरती के ऊपर गुरु गोरखनाथ की धरती है। उन्होंने इतने सारी विधियां योग की बता दी। थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स ही टोल्ड अबाउट योगा। गुरु गोरखनाथ, यू आर सिटिंग ऑन दैट लैंड। इसलिए शब्द बहुत प्रचलित है, गोरख धंधा, बिकॉज ही गेव सो मेनी मेथड्स एंड ही सेड अबाउट योगा, योगा सर्व योगा। जो आपके सारे दुख दूर कर दे वह योगा है। अभी यहां पे कुछ डॉक्टर लड़ पड़े, कहते हैं तुम योग को पूरा नहीं बोल सकते। अभी मैं उनसे ही पूछता हूं, क्या आप योग्य हो? अभी हाथ उठाएंगे। आप में से कितने लोग योग्य हो? हाथ उठाइए। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर योग्य। योग्य हिंदी का शब्द, शायद मैं बोलने में गलती तो नहीं कर रहा, तो आप हाथ उठाओ। योग्य हो तो उठाइए। धीरे धीरे क्यों उठा रहे हो? वेरी गुड। योग्य। अच्छा, जो अयोग्य है वो हाथ उठाए। चलो, हम अयोग्य। आप अपने आप को योग्य मानते हो लेकिन जानते नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट नो वेदर यू आर रियली कैपेबल और नॉट। योग्य शब्द योग से बना है। योग में ओत प्रोत होगे, योग में जियोगे, योग में पियोगे, योगी होगे तो योग्य होगे, नहीं तो योग्य नहीं हो सकते। असंभव है। और जिन्होंने योग को नकारा है वो डॉक्टर भी पूरे कहलाने लायक इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन का इलाज पूरा नहीं हो सकता। जो स्वयं पूरा नहीं है, जो स्वयं भीतर से अधूरा है, वो दूसरे का इलाज क्या करेगा? जो खुद मर रहा है, खुद को मौत का भय है, दूसरे का इलाज क्या करेगा? बधाई के पात्र हैं राधेश्याम जी, जो हिंदुस्तान की इस संस्कृति को, इस धरोहर को वापस जिंदा रखने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। इनको शत शत नमन करो। दो 2006 में मैंने न्यूयॉर्क में एक महिला को एक टेक्निक सिखाई योग की। मुझे अभी अभी मालूम पड़ा, उसने अपने नाम से उसको पेटेंट करा दिया। ये ताली बजाने की बात नहीं है। अभी हमें यह भी मालूम होगा ताली क्यों बजाई जाती है। बताएं आप, ताली क्यों बजाई जाती है? मुझे समय की सीमा बताई नहीं, प्लीज। भाई, हमें 2 मिनट का समय दिया है, बात खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे बड़े अच्छे वक्ता हैं, हमें उनको भी सुनना है। कभी हम फिर आराम से सुनेंगे। मुख्य बात, आज पेटेंटों को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर आप वापस गुलाम बनते जा रहे हो। इन पेटेंटों को ध्वस्त करना होगा। पॉइंट नंबर 1, एक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, क्षमा याचना नहीं, अधिकार पूर्वक उन एलोपैथिक डॉक्टर से बोलता हूं यहां जो उपस्थित हैं, उनको समाज के अंदर मान मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, आदर मिलता है, क्योंकि सरकारी मान्यता उनके साथ में है। क्या करते हैं वो? आपके रोग का इलाज करते हैं। एक योग्य योगाचार रोग का इलाज करता है, उसको भी पूरी उतनी ही मान्यता मिलनी चाहिए जितनी दूसरे को मिलती है। नंबर 3, जिम्नास्टिक्स योगा आसन का ही रूप है। जब जिम्नास्टिक को ओलंपिक्स में स्थान है तो योग को ओलंपिक्स में स्थान पूरा मिलना चाहिए। योग जगह जगह अपने अपने नाम से सिक्के से चलना शुरू हो गया है।
योग का आर्ष रूप, ओरिजिनल रूप ध्वंस हो रहा है। ओरिजिनल रूप में वापस आना चाहिए और इस देश की पुनः प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर कायम होना चाहिए। यह 4 मुख्य लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को लेकर हमने एक एसोसिएशन की स्थापना करी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन योगा, जिसके पर्चे शायद आप लोगों के पास में पहुंच गए होंगे। 20 तारीख को 6 मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और इस देश के कई महान संतों की उपस्थिति में उस एसोसिएशन का आरंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है। यदि आप सचमुच में योग के हृदय से, मन से नहीं, हृदय से, मन कुटिल है, मन चंचल है, हृदय से यदि आप इस योग के समर्थक हैं, इस योग को वापस देश में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और विश्व के अंदर योग गुरु, विश्व गुरु वापस भारत बने, तो उसके मेंबर बन जाना, किसी न किसी रूप में उसका योगदान देना और अपने आप को अधूरा कभी न मानना, क्योंकि आपके भीतर वो क्षमता है, वो शक्ति है कि जो योग के अंतर्गत पूरी सृष्टि का आपको मालिक बनाती है। अभी हमारे पीछे पीछे यह कहकर गई हैं, समाधि की बात करती थी। समाधि यानी पूर्ण समाधान, बस। That is the ultimate of your yoga. That is what we all have to live together. And ultimate yoga has to sustain all over the world with your full support. And you all have to practice, live like a yogi. And my best wishes, my blessings, not from me, but from my Gurudev Swami Paramanand Ji. Because of him, I got so many things in my life, and it has transformed many people all over the world, including the cancers. Many patients got cured. Many of the such non-curable diseases in the modern medicines, they got cured with his blessings and with the help of your yoga. I wish all of you the great success in your life. Again, I thank you, the organizers, to invite me, given this opportunity, and hope to see you again in this world with this body, and we all are united, we all are yogis. Om Shanti. Thank you very much, Swami Omananda ji.